So hi दोस्तों, welcome back to you all in my another video, and today's video is about pharmacy and language. A lot of politics in India due to the that North Indian do not want to learn South Indian languages and South Indian do not want to learn the North Indian languages such as Hindi. I'm a Hindi speaker basically, but no one was talking about the foreign language in the advantage to getting a job in abroad. So I'm talking here about the pharmacy, and you learn one of the language in the, for example, you know like French, German, Italian, Korean, Chinese, whatever. You must learn one language, and that language can give you a high paid job in abroad. So basically I'm going to start my own example here. Recently I have applied one of the job in Pfizer, and the job requirement they are asking that 100% is match my education, my experience, and my skills, each and everything. So but there is one criteria they call the desirable criteria, one is the essential criteria. So I fulfill that the essential criteria, but they are asking that you must, if you know that the Korean language, so this is advantage, and we are looking a person can fulfill all the requirements. So I applied, and the HR has called me and we discussed, so at the end HR told me that we are looking a person they know the Korean language. This is the desirable because this is a global clinical trial, and you have to handle the site. Those are some clinical trial ongoing in the Korea, So after the first round, and they did not proceed my application further just because of my language. So there are certain areas, there are the demand for language. For example, clinical research, pharmacovigilance, even in the medical writing and medical coding. So a lot of areas there is a mandatory, at least one language. So there is a additional, So for example, if there is a 3 candidates, they are shortlisted, and 1 candidate know additional language, so they will prefer that particular candidate over these 2 candidates. And apart from these, if you want to work in Germany, if you want to work in Switzerland, if you want to work in Italy, any of the country, if you want to work, you must know their own local language. If you know their local language, there is certain advantages you get in job. तो लैंग्वेज का एक बेस्ट एग्जांपल आई वांट टू गिव यू हियर द इजिप्ट द इजिप्शियन वांट टू वर्क मोस्टली इन द मिडल ईस्ट. तो मिडल ईस्ट इफ यू गो एनी कंट्री, UAE, Saudi Arabia, Oman, Qatar, everywhere the 80% population, the working, the healthcare professional, including the pharmacists, they are from Egypt because they know the Arabic language, So those are Indian, Pakistani language, they don't know the Arabic, most of them. So this is उनको बहुत प्रॉब्लम होती है. तो अगर आपको जाना है मिडल ईस्ट में ही जॉब करनी है, आपका एम है ये, तो फिर आपको जो है ये मैंडेटरी है कि आप जो है अरेबिक लैंग्वेज को लर्न करें. तो ये सेम एग्जांपल जो है एप्लीकेबल होता है कि आप मिडल ईस्ट में कहीं भी जाएंगे तो अरेबिक जो है मैंडेटरी नहीं है, मगर अगर आपको आती है तो फिर आपको जॉब ईजिली मिल जाएगी. अगर नहीं आती तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी. So for example, if you want to work in France, in French, so you must know the French, then you can work in any of the field, including working as a pharmacist. And French also, also mandatory nowadays in Switzerland, also some part of the Canada also they speak in French, So French language, is widely accepted, So ऐसा क्या है कि आप लोगों को एक लैंग्वेज सीखनी चाहिए आज while you are studying. तो अगर आप फार्मेसी कर रहे हैं, आप 3rd ईयर में हैं, 4th ईयर में, 5th ईयर में, मतलब आप B.Pharm कर रहे हैं, PharmD कर रहे हैं, और आपका एम है कि आपको अब्रॉड में जाना, यू मस्ट लर्न वन लैंग्वेज फ्रॉम योर ओन. तो आपको एक लैंग्वेज सीखनी चाहिए. अब ये आप लोग पूछेंगे कि आपको सब कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो वाइडली एक्सेप्टेड है, जो कि हम सीख सकें और हम विदेश में जाके जॉब कर सकें. तो इसका कोई ऐसा पर्टिकुलर आंसर नहीं है. ये आप अपने आप से पूछिए कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपको कहाँ जाना है, उसके हिसाब से आप अपना लैंग्वेज का सिलेक्शन कीजिए. जैसे कि आपको फॉर एग्जाम्पल आपको जाना है जर्मनी, तो फिर आप जो है जर्मन लैंग्वेज सीखिए, आप खुद से सीखिए. यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको जो है लैंग्वेज सिखा रहे होंगे, या बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स मिल जाएंगे, आप कोर्स कीजिए. या होता है कोई पेड कोर्स भी हो, कुछ
पैसे लेता हो $100-200 वो आपको सिखा रहा हो तो वो भी आप लीजिए। मगर ये ना आपको मस्ट आपके पास कुछ एक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए, एडिशनल पॉइंट, आप बोल सकें कि मेरे पास ये है और इसकी बेस पे मतलब आप कंपीट कर सकें एक दूसरे कैंडिडेट के साथ में, है ना। तो आपको बेसिकली एक लैंग्वेज आपके लिए मस्ट है। मैं आपको कहूंगा कि आपको अगर काम भी नहीं आता है, अगर आपको नहीं भी जाना है, फॉर एग्जाम्पल आपको ऑस्ट्रेलिया आना है या आपको यूएस जाना है, तो वहां पर लैंग्वेज का इतना प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि ये सारी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री हैं। मगर आपको एक सेकेंडली ऑप्शन लेना चाहिए कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया नहीं आ सकते हैं, अगर आप यूएस नहीं जा सकते हैं, तो फिर एक कौन सी ऐसी कंट्री है आप जहां वहां थर्ड कंट्री आप जा सकते हैं ताकि वहां पर जो है एक लैंग्वेज आपको आना चाहिए। जैसे आपको बताया था मैंने लास्ट वीडियो में कि जो हमने एक वीडियो किया था नॉर्वे की, नहीं तो नॉर्वे की आपको नॉर्वेजियन लैंग्वेज आना चाहिए, है ना। तो ऐसे ही आप कोई भी एक लैंग्वेज सीखिए और मस्ट है वो आपके लिए सीखना। ये आपको अपने सीवी में भी आपको हमेशा आप लिख सकते हैं कि भाई मुझे फ्रेंच आती है, कि मुझे जर्मन आती है, कि मुझे नॉर्वेजियन लैंग्वेज आती है ना। तो ये आपको एडिशनल एज देता है कि आपकी जो दिमाग है आपको 3-4 लैंग्वेज आनी चाहिए, है ना। आपको अब अपनी लैंग्वेज में ही फ्लुएंट नहीं रहें कि आपको जो है मुझे बस हिंदी आती है या मुझे जो है मुझे अपनी कंट्री तमिल आती है या जो भी आपका लैंग्वेज है ना। आप बियॉन्ड दैट बैरियर्स आपको एक फॉरेन लैंग्वेज सीखनी चाहिए। और अभी जो है इंडिया में जो है एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें भी ये चल रहा है कि आपको 2 या 3 लैंग्वेज आपको सीखनी है। तो मेरा भी एक आर्गूमेंट इसके अंदर ये है कि आपको एक एडिशनल लैंग्वेज आप बच्चों को जो है सीखनी चाहिए, स्पेशली फॉरेन लैंग्वेज। इंडिया की लैंग्वेज का कोई एडवांटेज नहीं है। अगर हिंदी आती है तो मेरा क्या या मुझे कोई जॉब मिल जाएगी हिंदी से, या मुझे अगर तमिल आती है तो तमिल से मुझे क्या लैंग्वेज तो मुझे जॉब मिल जाएगी, फॉरेन में नहीं मिलेगी। तो आपको एक फॉरेन लैंग्वेज सीखनी चाहिए। और आप किसी भी कंट्री में फार्मासिस्ट काम करना है तो वो लैंग्वेज जो है मैंडेटरी है, क्योंकि आपको जो है पेशेंट के साथ में इंटरेक्ट करना होता है, आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्ट करना होता है, आपको हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ में आपको इंटरेक्ट करना होता है ना। तो इन सारी चीज़ों के सारे फैक्टर्स को देखते हुए आपको मस्ट जो है एक लैंग्वेज लर्न करना चाहिए और फिर आप जो है आपको आगे बढ़ने से फिर कोई नहीं रोक सकता है। ये मेरा असेसमेंट है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो सो आई कैन मेक मोर वीडियोस फॉर यू।